Do you feel that Tier 2 India is redefining the future of real estate? The massive growth that the Tier 2 and the Tier 3 cities provide, that's not shown in Tier 1 cities anymore. Do you ever believe that Aligarh would experience this kind of luxury development? We couldn't even dream of doing something so luxurious at this place. Hi, I am Shambhavi, and today we are joined by Sagar Mangla, representing the new generation leadership of Ozone Group. Mr. Sagar is focused on sustainable urban development और इन्होंने future ready communities पर भी काम करना शुरू करा है through his luxury segment, that is the Golden Estate and the Aralia's Villa. आज हम बात करेंगे कैसे इंडिया में लग्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ स्क्वायर फीट और लोकेशन तक लिमिटेड नहीं है. इनका फोकस वेलनेस, ग्रीनरी, openness, better lifestyle का experience देती है. Thank you, Shambhavi, for the nice introduction. Looking forward to talking with you. So moving on to my first question, what made you believe that Aligarh is ready for a luxury resort style living? I think the first turning point where we realized that Aligarh was ready for such a luxury modern township resort living feature was just after COVID. When people were mostly at their house, they realized that they have so much money in the bank, they have so much time, but they don't have anywhere to spend those precious days and times with their family. So we had a really high increase in queries regarding bigger houses, houses with garden where, like, you know, the elders and kids, everyone can play together, be together. So I think it was that when we realized that Aligarh is ready now for a resort living community as well. So did you feel that the aspirants of people in tier 2 cities were evolving faster than the market itself? I think it's going right with the market, not faster, but people from tier 2 cities have always been very mobile in the sense they always prefer to have a second house in a tier 1 city. Right. So for example, for Aligarh, people prefer that they have a house in Noida or Delhi or somewhere close by where they are well connected with other amenities like the shopping malls and everything. So that is what we wanted to give in Aligarh itself. All the modern metropolitan facilities which are there in cities like Delhi, Noida, we wanted to make them available in Aligarh itself, starting from the living aspect of it. How do we make a beautiful home, a living community, and just more than a house, an ecosystem where people from different communities and genders and age gaps can also relax and have a good time together. Yeah, so it's more of just come and relax and have a beautiful time. Yes, exactly. What does live larger than life personally mean to you? Live larger than life, though, it's very different for me than it would be for someone else, I would say, because here I think mere personally to yahi hai, because my office, my home, my business, all is only in one place. So I don't need to really step out, move, go into the traffic, or, you know, face everyday problems of traffic pollution. Yeah. So that is one thing that has come to me वो इसी township की वजह से. But क्योंकि ओजोन सिटी भी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जहाँ हमारे पास एवेन्यूज अपना हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑफिसेस के हैं, तो यही ऑप्शंस हमारे रेजिडेंट्स के पास भी होंगे फ्यूचर में कि उन्हें भी इस टाउनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो वो एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ के लिए, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए. ऑल ऑफ दोज फैसिलिटीज़ हमारा सारा टाउनशिप में ही अवेलेबल होंगी. सो दैट इज़ इन सम वर्ड जो मैं लार्जर देन लाइफ एक चीज है वो यही है कि आपके एवरीथिंग यू वांट इज अवेलेबल एट योर फुटस्टेप. राइट. So this is actually something that you manifest. आजकल जो manifest term है, this is something that you manifest in COVID में, because you were not allowed to move out even for a minute. If you're getting something like this is actually. So actually during COVID it was a very different scenario here. Yeah. यहाँ लोगों का था कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, 2 लोगों से ज्यादा एक साथ घूम नहीं सकते. यहाँ हमारे पास 25 किलोमीटर की सीमेंटेड रोड्स है. तो सब अगर 20-20, 40-40 मीटर दूर भी घूम रहे थे सड़कों पे. So no one was stuck in the house. They were maintaining their distance and still being able to enjoy the nature and the COVID part of life. It was difficult for everybody, but if they were getting a space like this, exactly, this is a win-win thing. Yeah. Do you feel that Tier 2 India is redefining the future of real estate? I think in some bit, yes, the main growth and the massive growth that the tier 2 and the tier 3 cities provide, that's not shown in
tier 1 cities anymore, because they are already at a saturation point, be it in terms of the population density or the economic resources or the natural resources like water levels also. They've kind of drained down, and the boom for the metro cities and tier 1 cities will slightly be slow in the coming future, and we'll see people and investor moving from tier 1 to a tier 2 city where they can explore more investment option and better returns. You know, you don't want to settle down in a tier 1 city. Exactly. मतलब अगर घर लेना है और settle down करना है तो tier 2 city जहाँ पे अच्छा natural, you know, you get the fresh air. There's no pollution here, less traffic, less sound pollution also, Yeah, it's because there's so much openness. So it really feels like you're always living in a second home. yeah, I mean it's refreshing here, I would say. Why are people today increasingly looking beyond the metro cities for lifestyle and investment? Pollution, which is the main thing, the weather conditions, how, like, you know, Delhi is touching 48 degrees right It's now. pathetic out there. But still, like the city that we have in Aligarh, Ozone City, relative temperature is always 2 to 3 degrees lesser Yes, than so the. it's cooler. Exactly. So there's more space for the wind, more space for the green plants and the greenery, more oxygen, and no extra vehicular activities happening inside. So very less pollution and noise reduction also. Yeah, it is actually calmer here. I could feel there's no noise pollution or no trucks going around honking and stuff like that. It's very good here, beautiful. Did you ever believe that Aligarh would experience this kind of luxury development? Actually, when we initially started in 2008, we couldn't even dream of doing something so luxurious at this place. We always thought that we'll do, okay, small affordable houses, 100 square yard, 200 square yard. But as in when it's been over 2 decades since we've been working here, and we realized that there's a lot of industry here. A lot of people who can't just move their factories, who are stuck in Aligarh only, and they wanted a better living class, they wanted a better living standard. So I guess that it was the main reason behind the creation of such a luxurious estate here. When you first imagined a project like Golden Estate, did you imagine that Aligarh would respond this strongly? Actually, when we first, it was my father's dream project. Oh wow. We got the concept from USA. They were visiting a cousin in Naperville city. So that they realized that they had boundaryless houses, like no boundaries. So my backyard was common to my neighbor's backyard, and it felt like you're just living in a bigger space. So we tried to do that here, but then we had to learn from what people wanted, how people perceive that idea in Aligarh as well. So we had to do some changes. Since the launch of the project, there has been very high demand, very high information spread about the project. People are curious about what's happening here, what's new. Even the cricketer Rinku Singh, international We just got cricketer, to know that. yeah, he also just booked a house with us last year, and he's been staying here since a year. So that all created a lot of buzz around the project as well, and made people realize that, okay, we have something luxurious in Aligarh as well, where we can stay, where we can spend the rest of our lives. It is actually luxurious out there. I mean, I just, look around it and interesting laga mujhe kafi. A very interesting question. Where did the inspiration for Golden Estate actually come from? It was from a city in Chicago called Naperville. We were there for about 15 days, and this was about maybe over a decade ago when this idea first came to our minds. And it was kind of the opposite from what we have done here, in which there was a circular road around, and all the houses shared a common backyard. So everyone had a common backyard where they could chill, they had their own privacy. But we had to rotate it in a way where everyone front yard is common. All the houses are park facing here, because people wanted their privacy also, they wanted their boundaries also. Still, they wanted to be connected to the nature. So that's why we had to do the opposite, where we have a central garden where all the houses here, villas here are park facing, but still they maintain the privacy and the safety issues. Acha, tell me one beautiful memory about that place. Something that you still remember or you still resonate with, something like that. I think it was the scale at which the houses were there. Here we are only doing starting from 500 square yards. There people had their houses in
2 acres, 3 acres, and that, just imagine having a common backyard, which is of like, it had a lake in the middle as well. So that is the aspiration we have for the next 100 acres that we have. So like create an artificial lake, maybe a golf course around it, and maybe like do some farmhouse projects. Were global resort destinations and international lifestyle communities part of the plan originally? Yes, actually they were. Like the entrance of our this township, Golden Estate, is also inspired by the Gardens by the Bay from Singapore, where they have the hanging gardens, 150 feet tall metal structures. So little bit from different countries. I love to travel, so I've traveled over 35 countries. Whatever I learn there, maybe it's how the signposts are Oh, so there are placed. bits and pieces of every country here. Oh, nice. So whatever like learnings in terms of the infrastructure or technology or design language that I personally or my brother have picked up from various nations and countries or resorts that we have visited. So we've tried to accumulate all of that and deliver all of those experiences here. You have kind of कि हमें जहाँ जहाँ पे आपने travel किया है वहाँ का एक memory आपने यहाँ पे build करा है. हाँ, ऐसा कोशिश रहता है कि जब भी हम घूमने जाते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज हो कि जी एक गमला कैसे रखते हैं, हाँ. तो वो छोटी छोटी चीजें हम देखते रहते हैं और यहाँ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश रहती है. Which is very interesting also. मतलब you will also have a memory कि I visited this country, now I had this memory here as a part of my life. Beautiful. Yes. I want to know why only 40 residents? Because we wanted to create an exclusive club first. Interesting fact. Because here we have also done a thing where the selection is on profile basis. Acha. Not anyone can just come and just buy a house here, because it is not only a building or a plot that we are selling, it is a complete ecosystem lifestyle package that comes along. We have to take care of who our neighbors will be, who their neighbors will Which be. is very important. Exactly, because it's just like one rotten apple spoils the whole basket, right? Totally agree. So we have kept that. when you're building something that precious. Exactly, and maybe this is like a flagship or the benchmark product. So that's why we wanted to highly be selective about the quality of people who will be staying in. We didn't want investors to reap in only the benefits. We wanted only the end users to partake here, so that this project gets completed soon and we can move on to the next phase of it. Right. So it's basically happy neighbors, happy lifestyle, है ना? ऐसे कौन से practical features है Golden Estate में जो daily life को easier बना रहे हैं? इसमें एक सबसे खास चीज जो हमने रखी है वो है कॉन्सियर्ज सर्विस. कॉन्सियर्ज सर्विस इज जस्ट लाइक हैविंग एक रिसेप्शन जैसे होटल पे होता है. अच्छा. आपको एक नंबर दिया जाता है, आप उधर रिसेप्शन पे कॉल करिए, आपको जो भी नीड्स होटल में एक्सेसिबल होती हैं चीज़ें, वो आपको सारी हम यहाँ डोर टू डोर फैसिलिटी पे प्रोवाइड कराते हैं. सो बी इट अ मसाज एट होम, बी इट अ सैलॉन, बी इट योर पपी और पेट्स ग्रूमिंग, बी इट इफ यू नीड अ कार और अ ड्राइवर, or you need chefs or like valet service for your events, event planning. All of that हमारा कोशिश है कि हम सारा एक ही phone call पे आपको provide करें. So it is like true to what the name is. It's genuinely resort living. ये एक feature है जो serviced हम apartments में देखते हैं. हाँ. Generally. But ये हमने But इतनी amenities तो apartments में भी नहीं होती हैं. I mean, pet नहीं होता है, salon नहीं होता है. तो वो हमने कोशिश की है कि हाँ हम सारे अपार्टमेंट्स अपने सारे विलाज में सारी फैमिलीज को प्रोवाइड कर सकें. Nice, which is very interesting and also a very new concept. मेरे को ऐसा लग रहा है. I've not heard in a while. मतलब. So it's basically a mix of hospitality and your real estate. Living a luxury life actually. Exactly. So do you think luxury today is becoming more emotional and experiential than material? Yes, I totally agree with that. And another thing, it is becoming more experiential. Yes. You people are paying for the experience rather than only the material. अब उन्हें है कि जैसे why do people go for a good 5-star hotel? They want that experience. They want that class. They want that status. They want to feel it. Exactly. तो अब ठीक है, like a lot of people have money, they can buy good watches, good cars,
But if they don't know how to drive a good car, what's the point What's the point? of having a good car? Yeah. Or if the roads are like that they don't allow you to drive a good car. Yeah, what's the point of having a Tesla if you cannot drive it? Like, you cannot drive it here. Exactly. तो यही चीज हमारा सिर्फ एक अच्छा महंगा विला बनाने से नहीं होता कुछ भी. You have to provide and take along the other aspects of things as well. कि एक ही चीज एक बिल्डिंग बनाने से घर नहीं बनता. आपको उसके पार्क्स, आपकी सारी सर्विसेज, जैसे यहाँ हमारी सारी सर्विसेज भी अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड है, स्टॉर्म वाटर भी अंडरग्राउंड है. सो ऑल ऑफ दैट थोड़ा 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 करके ही आपको एक पूरा लग्जूरियस प्रोजेक्ट या फिर एक टोटल होलसम प्रोजेक्ट वाली फील आती है. Yeah, I mean, this is actually everything at one place. I think लोग यही ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में और नहीं मिल रहा है लोगों को. People are running here and there कि बस मिल जाए. This is one stop place. So tell me one thing, when you're building a premium real estate brand, what are the responsibilities जो आपके ऊपर हैं? आई थिंक दो जो सबसे बड़ी चीजें हैं प्रीमियम रियल एस्टेट में वो आती हैं ट्रस्ट एंड एक क्वालिटी. Which is very important. Yeah, because there has been a lot of thought in the market कि बिल्डर ने ऐसा कुछ कहा कि अगर जो आप कह रहे हो आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो लोग आप पे फिर से ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है. I mean, I feel कि builders पे trust लोग जल्दी करते भी नहीं है because they don't deliver. Exactly. They don't deliver. Exactly. और ये चीज मैंने ये भी देखा है कि टियर 1 मार्केट में और टियर 2 मार्केट में बहुत डिफरेंस है. इवन अ रेप्यूटेड प्लेयर इन अ टियर 2 मार्केट जब वो काम कर रहा होता है तो उस पे भी लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं होता जितना टियर 1 पे होता है. If we launch a product, a luxurious product in tier 1 market, it gets sold overnight. Like, 40 units, it's not a big game. Like 2 weekends, it's sold out. But here in tier 2 markets, people don't have that exposure to buying. Like they don't have those many options. और वो ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं होता. Exactly. It is tier 2 is a buyer's market, not a seller's market. तो इधर ये बहुत टाइम लेके करते हैं लोग. तो यही दो चीजें इम्पोर्टेंट है. Here they want to see कि प्रोडक्ट आप पहले हमें एक सैंपल बना के दिखाओ या आप अपनी क्वालिटी बना के दिखाओ कि आप डिलीवर क्या करोगे. So like we launched this project 2 years ago. तब लोगों को लग रहा था कि we might not be able to deliver. अब now that we have delivered and like everything, they can check the quality, they can check. So the same reflects in the pricing also. Since these 2 years, prices have also increased 2x. वो तो होना ही था. Yeah. तो यही हमें लगता है आगे भी यही ट्रेंड रहेगा. But वो कुछ ही लोग होते हैं जो who have the vision to see the future कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं. So it's the good for them. अच्छा, did you face any problems building that trust? I think not very much. क्योंकि हम वैसे तो we are from a tier 1 city. हम tier 2 city में ऑपरेट कर रहे हैं. हम फरीदाबाद से हैं. तो हम बाहर से जब किसी और शहर से आके यहाँ डेवलप कर रहे हैं तो थोड़ा वो इनिशियली लोगों को लगता है कि जी ये बाहर के बिल्डर हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं. बट आई थिंक वो कुछ एक चीज टाइम ही होती है जो ये सारी चीजें आपको ठीक कर देती है. सो इट्स बीन अ कपल ऑफ इयर्स नाउ. द ट्रस्ट हैज बीन रीबिल्ड. पीपल सी अस एज द क्वालिटी एंड द एस्पिरेशनल बिल्डर्स वी वांटेड टू बी. सो द कम्युनिटी आल्सो शोज रिस्पेक्ट बैक. Right. और so okay, I'm just asking a fun question. Do you remember your first client or a customer who was here to buy something and you were just trying to talk, or how was it? Like, just how was the experience? Actually, it was right after COVID. And अभी तो जैसे मैं एकड़ों में डेवलपमेंट कर रहा हूँ. Then my father had given me a 100 square yard का plot. It was a task for you. It was a task for me कि बेटा अब आपको कंस्ट्रक्शन सीखना है. तो ये 100 गज का एक ड्यूप्लेक्स बनाते हैं हम. और फिर आप देखो कि इसे कैसे बनाना है, आपके ऊपर लेआउट, ड्राइंग्स, डिजाइन, एंड देन फिर व्हाटएवर अमाउंट वी आर बी एबल टू सेल इट ऑफ. तो वो मेरे को याद है कोविड में हमने पहला जो घर बनाया था, वी सोल्ड इट फॉर अबाउट 27-28 लाख रुपीस. आज उतने में तो प्लॉट भी नहीं आता. हाँ. तो वो मेरे लिए काफी बड़ी चीज थी. इट वाज माय बिगेस्ट सेल. तो मैंने कहा पापा एंड फर्स्ट ऑल्सो. तो मेरा था पापा तो ठीक है इसका 1% लेके दोस्तों के साथ एक एंजॉय तो करना, पार्टी तो बनती है. सो दैट वाज माय फर्स्ट सेल एवर. एंड डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी?
नॉट रियली बिकॉज अभी जैसे हमारे पास पूरी टीम तो है ही, हाँ. इंजीनियर्स की, आर्किटेक्ट्स की, सो दैट हैज ऑलवेज बीन द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस. प्लस फादर हैज सो मच एक्सपीरियंस, तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के अंडर विंग में ही सारी चीजें सीखी. हाँ. सो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो कभी आई नहीं. बाकी जो थोड़ी मोड़ी चीजें लर्निंग कर्व रहता है वो इम्पोर्टेंट होती है. Exactly. दैट इज अ पार्ट या ऑफ लाइफ. जैसे लोग अपनी पूरी लाइफ की सेविंग इन्वेस्ट करते हैं एक प्रॉपर्टी में, सो इज इट मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन जस्ट अ कंस्ट्रक्शन? वो तो बहुत जरूरी है. हाँ. बिकॉज हमारे बिजनेस में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हैव रिपीट क्लाइंट्स. राइट. जैसे आज आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, हाँ, आपको तो- पसंद आया, आप कल भी खरीदोगे, हाँ. परसों भी खरीदोगे. सो देयर ट्रस्ट मैटर्स मोर. बट हमारे में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ आवर सेल्स कम्स फ्रॉम रेफरल बेसिस. Which is word of mouth. Yeah. Very important. अगर जैसे आज किसी को घर खरीदना है तो वो सबसे पहले ये ढूंढता है कोई कि ओजोन सिटी में मेरा कोई जानकार रहता है, हाँ. तो वो कॉल करके उनसे पूछते हैं कि जी आपकी मतलब मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, RWA कैसा है, हाउ इज द बिल्डर, हाउ आर द पीपल देयर. तो वो सारी चीजें ट्रस्ट से ही आती है, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन से ही आती है. सो इट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू अस. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे रेजिडेंट्स खुश रहें. क्योंकि अगर यही खुश रहेंगे, राइट नाउ वी हैव अबाउट 2000 customers who have invested or being living with us, but we have space for 3 more thousand units. Wow. So मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये 2000 के साथ कुछ ऐसा, Yeah. because I want to sell to the next 3000 as well. Yeah, right. So I always have to keep my customers and clients happy and satisfied. Did you ever feel like yaar I should meet them, or did you ever meet them personally? Yeah, did you ever like went out कि yeah, okay, this is a resident, I should meet them, talk to them, know about कि क्या कुछ कमी है या कुछ. Did you ever do that? वैसे तो हमारी ऐसे ग्रुप्स टीम्स बनी हुई हैं अच्छा. who usually do that, who Okay. take feedback of residents Right. or the like you know new sales जब भी होती है तो वो हाँ. उनका feedback लेते हैं. Otherwise we also have a RWA community resident welfare association जिनके साथ हमारी टीम्स की रेगुलर मीटिंग चलती रहती है. Whatever issues or you know they want to start celebrating a new festival or anything like that, वो सारा हम अपना RWA और liaison जो हमारे कंपनी के थ्रू रहते हैं उनसे वो रेगुलरली डिस्कस होती रहती है. बाकी कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनसे हम पर्सनली भी इन्वॉल्व हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, Right. तो उनसे तो वो रेगुलरली वो कुछ भी हाँ. होता ही रहता है. सो दैट इज़ वेरी अप्रोचेबल रहते हैं, हम भी इधर ही रहते हैं. सो ऐसा कुछ बहुत मेजर गैप नहीं है बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द बिल्डर. Nice. Which is because you've built a very nice relationship. It's a kind of a friendly relationship you've built. Nice. Why do you think trust is the biggest currency in real estate today? It's the same thing. I think if trust is the biggest currency right now because it has been broken in the past. Right. Plenty of times. Plenty of Be it the builders of Apna Noida, be it the builders of any other place. They have not necessarily scammed people, but they have not been delivered also. they have not been able to deliver. They had you know different approvals and made different plans, so that has gone against them. So these days in the present world, the government is also taking big steps like the RERA implementation rule. So now the RERA covers everything end to end. It checks your papers, land property papers for the last 30 years, 40 years, so that there's no chance of even happening misconduct for the clients. Right. So I think government is also taking necessary steps so that the builder can ensure कि उनका trust customer पे बने. तो यही चीज है कि बहुत ही जरूरी है कि कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना रियल एस्टेट में. बिकॉज गाड़ी आप चलो ठीक है 10 खरीद लेते हो जिंदगी में, घर आप 1 या 2 बार ही खरीद पाते हो. तो वो किसी की जिंदगी भर की कमाई के साथ आप अगर ऐसा कुछ खिलवाड़ हो जाता है तो वो अच्छा नहीं रहता. एग्जैक्टली. प्लस इट्स देयर लाइफ्स अर्निंग, सो इट इज that reason why it is very necessary to have that. It is a personal thing. Every human जो भी अपना investment कर रहा है, it's very personal to them. So yeah, I mean, I think every builder out there should think like this कि it's a personal thing कि नहीं इनका घर नहीं खराब करना है. Exactly. उनको एक experience देना है कि वो फिर दुआई तो देंगे कि और फिर customers आएंगे, which is very important. How do you build a long-term credibility in a market where buyers are so skeptical?
long-term credibility is just been made by time and again. आप जो चीज़ कहते हो वो आपको डिलीवर करते ही रहना पड़ेगा. यू कांट बी लाइक ठीक है अब मैंने 6 महीने पहले 6 साल पहले एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया था, आज जो भी मैं बोलूँ वो होगा. बिकॉज ट्रस्ट बनने में तो बहुत साल लग जाते हैं. आपको 20 साल ट्रस्ट बनने में लग जाएंगे, बट एक बार बाय चांस किसी के घर की कोई छत गिर गई या कुछ टूट गया, कुछ भी मिस हैपनिंग आप वो फॉर XYZ किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है. चाहे वो अपना रेजिडेंट ने अपना घर अपने आर्किटेक्ट से खुद बनवाया हो, उसकी भी छत अगर गिरती है तो फिर नाम ऐसा ही आता है कि बिल्डर के इस टाउनशिप में ऐसा हुआ. तो ये थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता है लोगों में. वो मीडिया आउटलेट सारा वो प्रॉपरली दिखा नहीं पाते. एग्जैक्टली या तो बहुत ज़रूरी है कि हम लॉन्ग टर्म में अगेन एंड अगेन वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके. चाहे जैसे अब किसी का मैंने एग्जांपल दिया, घर की छत गिर गई, सो वी शुड सेंड आवर टीम्स की आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज, हमें एक ऐसा स्टेटमेंट निकालना चाहिए. तो यही सारी चीज़ें होती है कि आपको अपनी कम्युनिटी को साथ लेके ही कैसे चलना है. यू कांट ग्रो विदाउट देम. हैज इट एवर हैपेंड विद यू कि कुछ मिसहैप हैपनिंग हो गए एंड देन you have to cover it up, or you just did the quickest thing that you could do to resolve the issue? ऐसा कुछ हमारा रेजिडेंस वगैरह के साथ तो कभी नहीं हुआ, बट इट इज सच अ वेरी गुड थिंग. बट इट इज सच अ बिग साइट कि कुछ ना कुछ लेबर इश्यूज कभी कभार होते हैं. सो वी डू आवर बेस्ट टू व्हाटएवर असिस्टेंस, व्हाटएवर हेल्प वी कैन प्रोवाइड विद देम, because we have over 500-700 laborers which are working on site every day. तो अभी भी रिसेंटली जैसे अभी आप देख ही रहे हो गर्मी इतनी ज़्यादा है, 47-48 डिग्रीज. सो वी हैव प्रोवाइडेड ऑल ऑफ देम कैप्स, गमछाज, ऐसे घड़े लगवाए हर जगह पानी के लिए ताकि उनकी वेलबींग सही रहे. I mean, if you are providing luxury to the residents, I think laborers को तो आपको minimum तो देना ही चाहिए because ultimately they've built it. Exactly. तो खून पसीना तो उनका भी लगा है. Exactly. What does Golden Estates make different from the townships? The main factors which make it different from a typical township is the resort living feature which we have here. How we have a concierge here. How we have all the villas are park facing. So we also have different facing options of villas. So like some of the villas are sports facing villas. Some of the villas are, volcano facing villas. Some are park facing villas, garden facing villas. तो ये चीज़ें हो गई. Plus the variety and the amount of horticulture and landscaping we have done. We have over 350 varieties of different plants and trees which are here, which brings a variety of different birds and species around here as well. So it feels like a natural habitat ecosystem that we have created, which is very difficult for anyone to provide only for 40 families. Like ऐसे बहुत सारी societies दिल्ली में या नोएडा में है who are doing it for maybe 400-500 families. They've created a central park. Nowhere they are doing it only for 40 families. ऐसे वो 40 कहाँ से आया? वो 40 तो ऐसे कुछ हमने प्री डिसाइडेड नहीं था कि 40 ही होगा. वो तो जब मैप बना, जब लेआउटिंग करी, earlier we are getting option of even having 58 villas, but then फिर हमारा पार्क स्पेस कम हो रहा था. हमारी एमिनिटीज जो हमें एम्फी थिएटर या जो एल्डरली के लिए वॉकिंग गार्डन्स वगैरह बनाने थे वो नहीं दे पा रहे थे. सो वी वर लाइक ओके ठीक है, वील रिड्यूस द नंबर बट फैसिलिटीज हम रिड्यूस नहीं करना चाहते. तो वो हमारा अभी 70% 75% ओपन एरिया है. In the resort, only 20-25% पे हमारे घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं. So abhi you were describing about the facing of the houses. Yeah. So just can you एक बार explain what it is about, like park facing, volcano and. So we, like I said, it's a circular arcade, circular park. So कुछ park houses है जहाँ से आपका window view जैसे आप होटल में देते हो तो pool view आता है. ठीक है. तो हमारे बहुत सारी इधर वाटर बॉडीज है. वी हैव अ वोल्केनिक वाटरफॉल हियर, वी हैव किड्स प्ले एरिया, वी हैव पटिंग गोल्फ, वी हैव अ डिफरेंट स्पोर्ट्स वैरायटी आल्सो. सो वो जो आपका घर से मेन विंडो से मास्टर बेडरूम से व्यू आता है, वी हैव कैटेगराइज्ड द हाउसेज अकॉर्डिंग टू दैट आल्सो. कि जैसे अगर आपके किड्स आपकी फैमिली में हैं, घर पे किड्स रहेंगे, सो वी रिकमेंड कि आप स्पोर्ट्स विला
पे जाओ, अगर आपका स्पोर्ट्स एमिनिटीज ज़्यादा रहता है, अगर आपका है कि एल्डरली लोग ही हैं कि ऐसा है, सो गार्डन फेसिंग आपके लिए रहता है कि आपको वॉक करना वगैरह पसंद है। ये सिर्फ आपका एवरीडे व्यू के लिए ही है, बट ऑल द हाउसेज जो भी हैं वो सब में सेम फीचर्स और फैसिलिटीज हैं वैसे। Was the vision always to create an integrated lifestyle ecosystem rather than just a residential project? ये हमेशा से ही था कि एक इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल इकोसिस्टम ही बनाना है। अच्छा। ये हाउएवर पहले हमने सोचा नहीं था कि वील एक्सपैंड अप टू 250 एकर्स। पहले हमारा था कि वी डू 100-120 एकर्स हम बनाएंगे और उतना काफ़ी होना चाहिए, बट अभी हम ओवर 130 एकर्स तो डिलीवर और डेवलप कर चुके हैं। वी हैव अभी 30-40 एकड़ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, एंड वी हैव अनदर 100 एकर्स 80 एकर्स जो हमारे पास रॉ लैंड पड़ी है, जो हम अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही है उसके हिसाब से डेवलप करना चाहेंगे। ओके, तो मतलब you're planning it like अभी से प्लानिंग शुरू हो चुकी है? हाँ, प्लानिंग शुरू हो चुकी है। नाइस। कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए मुझे कि जैसे लोग लैंड लेने आते हैं तो मतलब उनका क्या बिहेवियर होता है, मतलब वो डू दे आस्क यू कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, कि मतलब अभी मैं खरीद रहा हूँ तो क्या क्या उनके क्या मतलब क्या दो तरह के लोग आते हैं। अच्छा। एक तो फर्स्ट टाइम बायर आता है जो बिल्कुल ही अनइन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट है, जिसे पता ही नहीं कि लैंड प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है। तो वो तो ये सारे सवाल जवाब करता है कि जी ये लैंड ओरिजिनल है, जेन्युइन है, कि आपके पास पेपर्स हैं नहीं है। और एक होता है इन्फॉर्म्ड बायर जो इस चीज़ में जानकारी रखता है, जिसके फैमिली में किसी ने कभी लैंड खरीदी होगी या उसने भी पहले खरीदी है, तो वो सीधा सीधा मांगता है क्या ये आपका प्रोजेक्ट रेरा और अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड है। अच्छा। तो जैसे ही रेरा अप्रूव्ड हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है या हमारे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहाँ से आ जाता है, तो लोगों के क्वेश्चंस बहुत कम हो जाते हैं अगर उन्हें रेरा के बारे में पता है तो। सो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम सबसे ज़्यादा तो लोगों को एजुकेट करें कि रेरा है क्या। हाँ। और वहाँ से अगर अप्रूवल है तो कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रेरा उन्हीं के लिए बनाया गया है, कस्टमर्स के लिए, और वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी ध्यान रखता है। और जो कस्टमर्स फर्स्ट कैटेगरी के जिन्हें कुछ पता नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती, तो हमारी टीम है, मार्केटिंग टीम या हम खुद भी, हम पूरा अपना कोशिश करते हैं कि उनकी सारी क्वेरीज, सारी जानकारियों को हम अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स और रिप्लाई दे पाए। तो मतलब फिर ये भी होता होगा ना इधर कि आपकी टीम या व्हाटएवर यू गाइस हैव प्लान्स, मतलब हैव द टीम फॉर, आप लोग उनको बैठ के फिर वो एडुकेट करते होगे कि ये रेरा है, ऐसा है ना, मतलब पूरी टीम। हमारे टीम का एजुकेशन अलग चलता है, जिसमें हम टीम को बताते हैं कि ये चीजें हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट इन चीजों से सर्टिफाइड है, ये चीजें, देन द सेम थिंग दे कन्वे टू द कस्टमर्स ऑल्सो। यही सेम चीज हमारी ब्रांडिंग में भी जाती है, अवेयरनेस में भी जाती है, हम अवेयरनेस ड्राइव वगैरह भी कराते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कस्टमर तो इन्फॉर्म्ड ही आता है, उन्हें पता है कि जी 20 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, सारी चीजें अप्रूव्ड है, तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं। बट जिनके होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, वी मेक इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई देम। ओजोन टाउनशिप इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तो मतलब कुछ बैड है ये या इज इट अ गुड थिंग कि कस्टमर्स को कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ये इतना दूर है शहर के, कैसे क्या? देखो, कस्टमर्स को तो इनिशियली तो बहुत ज्यादा होता था। अच्छा। कि ये बहुत दूर है, बाहर निकल गए हम तो शहर से, यहाँ कुछ भी आसपास नहीं है। राइट। बट जैसे जैसे अब टाइम जाता जा रहा है, वो दूरियां कम होती जा रही है। अब फिजिकल डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा सेंटर से जैसे पहले था, बट जो रोड कनेक्टिविटी है वो रोड्स बड़ी चौड़ी होती जा रही है। अभी जैसे ये 2 लेन हाईवे बना ओजोन सिटी बाईपास, अब ये 4 लेन बाईपास के लिए अप्रूव हो चुका है। तो जैसे ये 4 लेन बनेगा तो ये और शहर के पास आ जाएगा, लोगों को लगेगा कि ये और पास आ गया। बिकॉज पहले यहाँ से सेंटर पॉइंट पहुँचने में अगर 20 मिनट लगते थे, आज वो सिर्फ 12 मिनट में ही पहुँच जाता है इंसान। तो लोगों को ये थोड़ा सा रहता तो है ही कि ये बाहर जाके है, बट आई थिंक इट्स बोथ, कि गुड भी है इसमें, बैड भी है। बैड लोगों को यही लगता है कि जी हम सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, बट गुड ये है कि आप पोल्यूशन से भी दूर हो रहे हो, आप क्या कहते हैं नॉइज से भी दूर हो रहे हो, जो ट्रक्स की, बसेस की, एनिमल्स की आपको सुबह शाम नॉइजेस आती रहती है, प्लस आप फ्यूचर के बहुत पास आ रहे हो। राइट।
जैसे यहाँ आप चाहे एयरपोर्ट आ रहा है या हाँ। जितनी भी नई एमिनिटीज या नए कनेक्शंस और कनेक्टिविटी है वो सारी यहीं से सारी स्टार्ट होती है। बट अब जैसे हम कोई भी बड़ी चीज करना चाहें या कोई भी बड़ा डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो शहर से थोड़ा बाहर निकल के ही हो पाता है। तो इस वजह से हमें कोई ऑप्शन भी नहीं था कि 200-250 एकड़ आपको बीच सिटी के सेंटर में तो कहीं मिल भी नहीं सकता। सो इट वाज यही हमारे पास ऑप्शन था कि हमें थोड़ा बाहर ही करना पड़ेगा। बट अब लोगों के लिए यही मौका है, इससे पहले ये अंदर हो जाए शहर के कि तब तक वो रीजनेबल पॉकेट में है तब तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जिस दिन ये ऐसा हो जाएगा कि इसके बाहर भी एक बाईपास आ जाएगा तो फिर ये आउट ऑफ रीच भी हो जाएगा बहुत लोगों से इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मनी दैट कम्स। आई मीन दिस इज अ बेटर ऑप्शन। आई थिंक ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है सिटी के। हाँ जी हाँ ओके। और जैसे एयरपोर्ट की आपने बात करी तो एयरपोर्ट तो यहाँ पे बहुत पास में है। सो एयरपोर्ट के साथ तो हमारा एक कॉमन वॉल है। अच्छा। सो पहले अभी तो फेज 1 एयरपोर्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, अलीगढ़ एयरपोर्ट, विच हैज वीकली फ्लाइट्स टू लखनऊ अपना। बट अभी ये सिर्फ फेज 1 ही हुआ है। बाय 2028 दे वांट टू कंप्लीट द फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ इट, इन विच दे हैव एक्वायर्ड 750 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदा है और वो पूरा एक इंटरनेशनल लेवल का कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहते हैं जो कि आपको जेवर एयरपोर्ट और IGI दिल्ली एयरपोर्ट को असिस्ट करेगा यहाँ से। तो मेरे को लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा अपना यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, अलीगढ़ की भी और हमारा टाउनशिप की भी। आई मीन दिस इज अ प्लस पॉइंट ओनली कि एयरपोर्ट सबसे पास है यहाँ पे। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अब उन्होंने हमें घर बना के दे दिया कि ये हमारे, वो तो उन्होंने अपना देव स्पेंड देयर लाइफ जो जीवन था उन्होंने जी लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए जो भी आए वो अच्छे से अच्छा है। बिल्कुल। तो वो जो भी घर खरीद रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये होता है कि ये हमारे बच्चों तक जाए तो बहुत अच्छा जाए। बिल्कुल। तो व्हाट इज योर टेक, मतलब आप उसमें क्या आपका इनपुट है कि आप बच्चों के लिए कैसे? आई थिंक जितना मेरे फादर ने किया था कि उन्होंने पूरा टाउनशिप डेवलप किया और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बट जब से मैं और मेरा भाई आए हैं तो हमने भी यही सोचा कि जी बच्चों के लिए इधर हम क्या कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इधर चालू करवाई हैं लोगों के लिए। वी हैव अपना एक फुटबॉल क्लब है जो कि हमारा फाउंडेशन चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वेयर वी हैव अबाउट 20-30 players who come regularly, they play. एक प्लेयर उसमें से नेशनल मेंस टीम कैप्टन बना है इंडिया का और एक लड़की अंडर 19 इंडिया टीम में खेल रही है। ऐसे ही सिमिलर स्टेजेस पे हमारे पास अपना फुटबॉल के अलावा स्केटिंग रिंक भी है। हमारे पास अदर स्पोर्ट्स में अपना वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, ये सारी एमिनिटीज़ भी हमने प्रोवाइड कराई हैं। तो ताकि बच्चों की ग्रोथ भी साथ साथ हो। और हमने सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, एल्डरली लोगों के लिए भी ये चीज़ें रखी हैं। सो वी हैव हमारे हर एक पार्क में प्रॉपर वॉकिंग ट्रैक्स, सिटिंग स्पेसेस, इमरजेंसी बटन्स दिए गए हैं ताकि कोई भी एज ग्रुप को ऐसा ना लगे कि हमारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया इधर। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पे बेनिफिट है। बिल्कुल। विच इज एक्चुअली कंसिडरिंग कि जो भी यहाँ पे आए खुश ही रहे। मतलब ये बताइए कि जैसे अलीगढ़ में लोग जो भी लैंड खरीदने आते हैं उनका सिनेरियो कैसा है? मतलब इज इट गुड, ठीक है, या कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अलीगढ़ में जो भी जितने भी लोग आते हैं दे मोस्ट ऑफ देम आर जेन्युइन बायर्स। अच्छा। कोई ऐसे रिफ्रैफ्स या ऐसे कोई फालतू के लोग नहीं आ जाते कि जी चलो आज विंडो शॉपिंग करके देख के आते हैं कि जी कैसा है, क्या रेट है, क्या प्रोडक्ट है। तो ऐसे लोग नहीं, जितने भी लोग आते हैं बड़े जेन्युइन लोग आते हैं। सो हु आर द एंड यूजर जिन्हें सही में घर खरीदना है। बट यहाँ एक चीज जो मेरे को डिफरेंट अपना Tier 1 सिटी से, फरीदाबाद, दिल्ली से लगी कि यहाँ की लोगों के पास बाइंग पावर है। दे हैव द मनी, they have the investment, they have the say, but फिर भी उनका जो decision making है ना वो थोड़ा slow है। अच्छा, okay। Because इधर maybe because it is a Tier 2 city, तो जो हमारा retired family members होते हैं they also have a lot of say in our decisions। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस 2 इंडिविजुअल संभाल रहे हैं, who are married, उनके बच्चे भी हैं, उनके फादर भी अलाइव है, बट सो फादर हैज द फाइनल से
in all of these सबसे बड़े things. तो वही हैं और Exactly, उनकी परमिशन के बिना कहाँ ही exactly. कुछ हो सकता तो है। जैसा अपना थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट दिल्ली हाँ। एनसीआर में रहता है या हाँ। इंडिपेंडेंट हाउसेस का वहाँ रहता है, वो चीज़ इधर नहीं है, जिस वजह से मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ी सी स्लो ऑपरेट करती है इधर। हाँ। बिकॉज इधर सिर्फ ये नहीं है कि जी एक ही बंदा, जैसे अगर मेरे को घर पसंद आ गया तो मैं घर ले लिया आज, अभी फिर मम्मा आएंगी, फिर हाँ। उनके बच्चे आएंगे, फिर दादा दादी आएंगे, तो ऐसे 4-5 विजिट लगती हैं इधर, सारे लोग पूरा देखते हैं, सारे लोग जब पूरे परिवार में सब सेटिस्फाई होते हैं तो तभी घर लिया जाता है इधर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो टियर 1 और टियर 2 सिटी में मेरे को सेलिंग में दिखा। बट बाकी तो जनरल इन्वेस्टर मार्केट, पोलाइट लोग हैं, ऑन मतलब ट्रैक पेमेंट्स रहता है सबका, तो ठीक है मार्केट तो। हाँ, बट वही है कि सबकी रजामंदी बहुत जरूरी Exactly. है। सब खुश होने चाहिए। व्हाट इज योर से कि ये कितना इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म टाउनशिप प्लानिंग? यार ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ। क्योंकि आप ये मान के चलो कि जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए 20 ईयर्स हो गए हमें आज। हाँ। तो अगर मैं 20 साल पहले सिर्फ सोचा होता कि मेरे को तो 10-20 साल में घर बना के यहाँ से निकल जाना है, तो मैं उस तरह का डेवलपमेंट कभी कर ही नहीं पाता जो मैं आज कर पा रहा हूँ। मैंने पहले से ही सोच के चला था कि मेरे को 200-250 एकड़ अगर बनाना है, सो जो आप नीचे सर्विसेज डाल रहे हो, चाहे वो वाटर लाइंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, हाउ डीप दे शुड बी, कि वो कितना डीप है कि आप और एक्सेस कितने घरों का उनमें आ सकता है। जो हमने सब स्टेशन प्लांट लगाया, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, या हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, तो वो भी उसी कैपेसिटी के हिसाब से बनाए गए कि जो इसकी फुल मैक्सिमम कैपेसिटी है। बट अगर आज मैं सिर्फ ऐसे करूं कि जी फॉर एग्जांपल आई एम अ न्यू बिल्डर, मेरे को नई 5 एकड़ कहीं ज़मीन मिल जाती है, तो वो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना ही नहीं सकते, क्योंकि उधर इतनी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती जो आपको एक बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में करती है। तो इसीलिए लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहता है कि वो लॉन्ग टर्म सक्सीड कर पाते हैं। बट जो छोटे हाउसिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, जो मतलब ऐसा छोटा सा इंडिविजुअल बंच बना दिया, उधर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बिकॉज वाटर लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, घरों के अंदर पानी आ जाता है। अब जैसे हमारी सारी रोड्स भी आरसीसी की है, सो वी हैव मेड एवरीथिंग फ्यूचर प्रूफ, सो दैट योर किड्स कैन ऑल्सो स्टे हियर। राइट। तो मतलब आपने पूरी अच्छे से वेल प्लानिंग के साथ सोच समझ के ये टाउनशिप बिल्ड करी है। yes. आपके फादर ने आपको एक 20 साल की लेगेसी पास ऑन करी है। इट्स ऑन योर शोल्डर्स नाउ। एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका क्या कहना है इस पे? So no doubt it is a big responsibility, the 20 years legacy that he has shared. I think ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है बिकॉज हम सिर्फ एक कंपनी ही नहीं है जो हम 4 लोग चला रहे हैं। वी आर अ फैमिली ऑफ ओवर 200 एम्प्लॉयज़, जिनकी फैमिलीज हम एक साथ चलती हैं। सो इट इज़ ऑन आवर फाउंडेशन डे or any celebration that I see how much they respect my father, or how much joy they have working in a company, or how they tell other people how different and likable our firm is, our brand is. तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है कि मेरे को भी ऐसी लेगेसी क्रिएट करनी है, मेरे को भी ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जहाँ की लोग, जिन लोगों को मैं खुश रख सकूं, जो लोग मेरे लिए साथ मिलके ऐसा काम करें कि हम इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स और प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर पाए। साथ में सब एवरीबॉडी इज Exactly. वर्किंग टुगेदर, सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। Yeah. तो ऑब्वियसली ये एक इमोशनल होता है, इट इज अ इमोशनल थिंग कि 100%. आपके फादर को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, फिर आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना है। ऑल्सो नोइंग दैट ये जो बिजनेस है उन्होंने खुद ही क्रिएट किया है, ही इज सेल्फ मेड मैन, केम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, तो वो एक एडेड प्रेशर, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड रहता है कि जी अब हमारे पास तो वी हैव हिज 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज़ गिवन अस अ बेस जो 20 साल उन्होंने तैयार करके दिया है। तो अब हमारा इतना मोटिवेशन और डेडिकेशन यही रहता है कि इसे और हम नेक्स्ट 50 years तक कैसे लेके जाएं, और फिर कैसे हम इसे एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेस से एक 3rd जनरेशन बिजनेस तक लेके जा पाए।
ऑल्सो बिकॉज आपके फादर ने वो रिस्पेक्ट अर्न कर ली है यस, जिसको आप लेट डाउन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम श्योर इट्स, आप इमोशनली भी इसमें बहुत इन्वेस्टेड हो गए। हाँ ज़रूर, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है मेरी भी, मेरे छोटे भाई की भी। हाँ। क्योंकि ये जो गोल्डन स्टेट प्रोजेक्ट है, ये हमने एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं, एक अपने घर की तरह ही बनाया है कि जी हम एक सेक्टर बना रहे हैं जहाँ 40 परिवार हमारे ही परिवार रहेंगे। हाँ। तो हमने कहीं भी ये बायस नहीं छोड़ा कि जी कस्टमर के लिए ये थे तो ये चीज़ हल्की लगा देते हैं या फिर यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो सब कुछ अपने लिए ही बनाया है, इन द सेंस कि हम तो यहाँ रेजिडेंट ही हैं, बट हमने फिर भी सारी चीज़ें इस लेवल से और इस क्वालिटी की बनाई है कि वो सारी चीज़ें हमें खुद ही यूज़ करनी है और हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली को यूज़ करनी है। तो ये एक चीज़ जो मैंने अपने फादर से भी सीखी कि हमें कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ किसी चीज़ पे तो मेरे को 10 रुपये फालतू दे के जाता है क्लाइंट। तो ये एक चीज़ है जो मेरे पास मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा, चाहे मैं आगे 20 साल 50 साल काम करूँ, जो कि मेरे को लगता है कि यही एक डिफरेंट चीज़ होगी जो मेरे को भी एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करने में हेल्प करेगी। और तो ये आपके फादर ने आपको सिखाया था, which is something that you'll always carry and will be carried forward. जैसे आपने मुझे बताया स्टार्टिंग में कि you have 2000 families who are living here and आप 3000 और families को यहाँ पे accommodate करने के लिए ready हो. So is there any message और कुछ आप शेयर करना चाहोगे अलीगढ़ की ऑडियंस से? अलीगढ़ के लोगों के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप आइए, देखिए, समझिए। सिर्फ जो अपना टीवी पे ऐड चल रहा है, जो अखबार में ऐड आ रहा है, उसे बिलीव मत करिए। आप यहाँ आके खुद देखिए कि लोग कैसे जी रहे हैं। इफ़ दे आर हैप्पी, इफ़ दे आर लिविंग द लाइफ दैट दे क्लेम, दैट वी क्लेम यू कैन लिव हियर, तो वो चीज़ें देखने से ही, अपना एक्सपीरियंस करने से ही समझ आती है। यहाँ की ग्रीनरी मैं आपको एड्स में नहीं दिखा सकता, यहाँ की हवा में आपको एड्स में नहीं दिखा सकता, बट अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ज़रूर फ़र्क पता चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद अलीगढ़ में नहीं रही हूँ, मैं शायद कहीं बाहर आ गया हूँ। आई थिंक योर मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि भाई आओ, एक बार देखो, एक्सपीरियंस करो एंड उसके बाद ही जो जजमेंट करना है करो, राइट? So thank you so much, Sagar. It was very nice talking to you and I learned so much today. मुझे बहुत अच्छा लगा to know कि you're giving this beautiful experience. Thank you, Shambhavi. It was a pleasure.